देखिए वर्क, जब भी कोई चीज किसी पर फोर्स लगाया जाए एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, बात ना करें, एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आपने इस पे फोर्स लगाया और ये यहाँ से यहाँ कुछ s डिस्टेंस मूव कर गई, तो क्या वर्क डन होगा? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन on an object is equal to magnitude of applied force, magnitude of applied force and distance traveled is equal to product of, प्रोडक्ट भी होगा, and distance traveled in the direction of applied force. Now Soumya, define work done. एक सेकेंड। सेकंड मत लगाओ सृष्टि। So work done in an object is product of magnitude of force applied and the direction of the moving object. And Whenever force is applied and an object is displaced, so it is called work तो done. then it is said that work is done. लेकिन हम पूछ रहे हैं work done की definition. Work force on any object, magnitude of force on any object is applied and that object is displaced, then in the direction of force applied, then it is No problem. work done in moving object is equal to the product of magnitude of force and the distance where force is applied on an object. थोड़ा और प्रिसाइज चाहिए एकलव्य। Work done in a moving body is the product of magnitude of applied force and the distance traveled in the direction of applied force. 1 joule. When an object has a mass. 1 joule. When a force of 1 Newton is applied on an object and the object moves by 1 meter, then the force applied on the object is called Work done on object is 1 joule. But done और moved by 1 meter सिर्फ नहीं बोलना है। In the direction of In the force. direction of applied force. in the direction of applied force. When it is said that work is done and when it is said that work is not done. Work is done. Work is done in an object in equal product. का ठीक है बोलो। When it is said that work is done and when it is when force is applied and object get displaced in the direction of applied force, then it is said that work is done. But if force is applied and no displacement takes place, then work is not done. If displacement takes place but force is not applied, इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या F जीरो हो जाए, no force is applied, तो no work is बिना done. force के displacement हो सकता है. हो सकता है इंटरस्टेलर स्पेस में चल रहे हैं ऑब्जेक्ट अपने आप सालों से करोड़ों सालों चलते चले रहे, कोई ग्रेविटी नहीं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू इट, जैसे कि सर्कुलर मोशन, क्या सेंटर की ओर फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑब्जेक्ट जाता है जैसे हाथ जा रहा है, वो उसको आप समझिए ना, चीज़ों को व्यक्त किया जा रहा है, आप सिर्फ मेरी ओर देख रही, इसको स्पीकर या बरबोस की ओर नहीं देखना है, आप एक्सप्रेस भी हो रहा साथ में, ठीक है कि नहीं? तो व्हाट आर द 3 कंडीशन व्हेन वर्क इज नॉट डन? If force is 0 and if displacement is 0. देखा जाए तो बोलो। So when it's
बोलो। So when work is 0, when distance is 0, so when both are 0. नो, when force is perpendicular to displacement। समझ आई? तो 1 जूल, साक्षी रिपीट करो। If 1 Newton force is applied on an If object, 1 Newton force is applied and it gets on an object and it gets displaced by displaced by in the direction of force applied, in the direction of when the work done is force applied, then work done on an object is 1 joule। क्वेश्चन पूछा जा रहा है when it is said that work is done, when work is not done, वो तो लेंगे। चलो, so if force is applied, आंसर है if force is applied and object get displaced due to applied force, then work is done। अगर आपने फोर्स लगाया और चीज डिस्प्लेस हो गई तो क्या कहा जाएगा कि वर्क हुआ। अगर आप धक्का दो किसी बॉक्स को, बॉक्स खिसक जाए तो वर्क हुआ। सेकंड, वर्क इज नॉट डन, वर्क इज नॉट डन इफ, कब नहीं होगा, इफ F is equals to 0. if S is equals to 0. if F is perpendicular to S, जैसा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, F इधर होता है और ऑब्जेक्ट किधर जाता है, इधर, तो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में F और S परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, कोई चीज इधर जा रही, फोर्स इधर लगा तभी तो ऐसे मुड़ता जाता है। यानी जो चीजें, कोई चीज मोमेंटरीली तो वो इधर ही जा रही है, अगला पॉइंट तो उसका इधर ही है, फिर मुड़ेगी तो जब भी जाएगी 2 पॉइंट तो अगल बगल ही होंगे, फिर तो बदलती जाएगी, इसी फोर्स की वजह से तो ये मुड़ जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए कब होगा, when force is perpendicular to displacement। बस उधर जा रही हो, धक्का तुम इधर दिए जा रहे हो, कह दो पिलाओ लस्सी, कौन पिलाएगा, पिलाएगा। जैसे बस उधर जा रही, कह दो हमने भी तो धक्का दिया कार, और तुम धक्का गेट की ओर दे रहे हो और कार उधर, तुम्हारा कोई योगदान है कार को मूव कराने, नहीं है ना। क्वेश्चन है when work done is positive, when work done is negative, when work done is zero। when work done is positive and when it is negative। मान लीजिए आपने किसी की स्कूटी को धक्का दिया और लेकिन आप उस स्कूटी को, धक्का तो आपने दिया लेकिन आप उसको ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, और ठीक है ना, यहाँ से आप धक्का दे रहे हो लेकिन स्कूटी आगे बढ़ रही है, तो ये शिका बैठी है, तो ये इधर जा रही है और तुम धक्का दे रहे हो इधर, ठीक है। इसके हैंडल को ये पकड़े, इतने लंबे हाथ है, मतलब ये हाथ है, चलो नहीं शिका के लंबे हाथ। अब देखो, मोटू so when
डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। सो पहला क्या है कि आपने किसी चीज को, ये देखो ये जीप आ रही है और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं इधर से, लेकिन क्या इनका धक्का काम में आएगा? जीप तो आगे बढ़ती चली जाएगी, तुमने फोर्स लगाया। ऐसे केस में ये इनका वर्क डन क्या है बताओ? नेगेटिव। हाँ, वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट is opposite to applied force, then work done क्या होगा? Work done is negative। ठीक है, जब आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो सुन लो, हाँ समझ में आएगा। जब आप अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाती हैं तो जो उस पर ब्रेक है वो आगे की ओर काम करता है कि वो ब्रेक पीछे की ओर काम करता है? जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाने का मतलब है गाड़ी को कोई सामने से धक्का दे रहा हो, वही काम ब्रेक करता है। लेकिन क्या तब भी आपकी गाड़ी कुछ देर तक आगे बढ़ती है? सो जो ब्रेक लगाया है आपने, उसमें फोर्स लगा है, तो दैट फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो ब्रेक हमेशा क्या काम करेगा? ब्रेक फोर्स लगाता है कि नहीं व्हील्स को रोकने के लिए, तब भी तो गाड़ी थोड़ी तो बढ़ती है। तो वो पीछे खींचने का काम कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ती चली जाती है। तुम किसी की इसकी साइकिल को धक्का दो, लेकिन तब भी ये थोड़ा तो बढ़ जाएगी। तो तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन सौम्या ने रुकते रुकते रोक दिया अपनी साइकिल 2 मीटर में, तो तुम्हारा 10 और इसका 2, तो 10 इंटू -2 बोला जाएगा। यानी मान लो कि अगर इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन और ये आगे बढ़ गया, ये 2 मीटर आगे बढ़ गई, जीप रुकते रुकते कितनी आगे बढ़ गई? लेकिन चूंकि ये अपोजिट है तो इसलिए वर्क डन क्या होगा? 10 into -2, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुआ है, तो इसलिए कितने जूल का वर्क डन हुआ? -20। बोलो, आप समझ में आई बात? बताइए, किसने पूछा था? अवनी ने? आ गया। तो अब देखो, इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड displacement takes place in the direction of force applied, तो उस समय क्या होगा? then work done क्या होगा? work done is positive। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है और उसको तुम इधर धक्का दे रहे हो, ये ट्रॉली है और एक आदमी इसको धक्का दे रहा है, तो अब ये ट्रॉली आगे बढ़ती चली जा रही है और आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 2 मीटर आगे बढ़ गई, तो बोलो वर्क डन क्या हुआ? 10 into 2, तब ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 20 जूल का पॉजिटिव वर्क डन हुआ। और ये किसका हुआ? ये नेगेटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि उल्टा चल रहा है। सही है? नाउ अब आपको एक क्वेश्चन, ये डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन, 3 और ये 4। और ये क्वेश्चन नहीं करना, ये वाला व्हेन नहीं, यशिका का फिगर नहीं बना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ व्हेन इट इज सेड दैट वर्क डन इज हाँ। 0, ये तो करना है। ये करना है, मतलब इससे हर 3 पाना करना। जितना 4 भी क्वेश्चन बोर्ड है। पे है वो करना है। 4 ही तो है। 4 चीजें हैं, उसका पॉइंट होगा समझ में। अरे वाह, 2 एक पीछे। सर कितने पेपर चेक हुए संडे टेस्ट में? हम्म, मैं संडे टेस्ट में पेपर संडे टेस्ट अभी शुरू है। Yes. कल होंगे। शुरू कर हो गया। मत करो। सर खत्म नहीं करेगा। सर वो
क्या नाम है? सर नहीं अंकल का चीकू। इनकी एक्सरसाइज ला दो। चीकू आज खुले आ जाओ। कर दिवाली में जला नहीं सकते क्या? हाँ सर कल दिवाली सर में एक अच्छा सा अनार रखो उसके ऊपर हमारे ये सर आप रख इकट्ठा कर लो, सर्दियों में काम आएंगे। हाँ फिर उसको जला के हम आग से किसी का तो बहुत अच्छा भी गया होगा ना। नहीं मेरा मेरा तो नहीं गया वो किसी को बोलो वो वही किसी अपना को चेक चाहिए। करवा के बस एक सृष्टि का दे देना, उसको प्राइस दे देना और किसी को नहीं चाहिए। मेरे को तो देखना भी नहीं होगा इतनी खुशी। बच्चे भी No. वो देख लेंगे क्या होगा। ओके थोड़ी देर के लिए होता है, 5 मिनट 10 मिनट के। बस फिर तुम्हें तो रेडी रहना पड़ेगा देखने। बेटा वो तेरा ध्यान पढ़ाना बंद कर दो, देख ले दो चलो सुन ले कानों से हाँ, आओ। हाँ भाई अब देखिए क्या है 2 मिनट जाके एग्जाम्पल 11.1 So a force of 5 Newton is acting on an object. तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर किसी चीज पर एक्ट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया है, तो 2 मीटर ये डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या हुआ, 10 जूल इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस छोटा है तो 5 न्यूटन इनटू 2 so 10 जूल। ओके 10 जूल वर्क डन हो गया। नाउ इन टेस्ट क्वेश्चन page 148 first question, a force 7 Newton acts on an object and the displacement is 8 meter in the direction of force। तो 7 न्यूटन का इस बार फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है वो कितना डिस्प्लेस हो गया है, 8 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि what is the work done। So work done is equals to force into displacement। force 7 न्यूटन है और ये 8 मीटर डिस्प्लेस हो गया तो 56 जूल। 56 जूल वर्क डन हुआ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 149 when do we say that work is done, it is already covered। यानी if we apply force and displacement takes place either in the direction of applied force or in opposite, perpendicular ना हो, परपेंडिकुलर में तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तब उस केस में वर्क डन नहीं माना जाएगा। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, बेहतर तो यही है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स लिखो, सबसे अच्छा क्या होगा, देन इट इज सेड दैट वर्क इज डन। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ऐसे लिख लो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, in the direction of applied force, then it is said that work is done an object। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। अक्षित क्या आप बता सकते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन?
जैसा कि W is equal to F इन्होंने अपने फेस के एक्सप्रेशन से बता दिया है कि W is equals to F into S. Now, सनी थर्ड क्वेश्चन का आंसर दें. बोलो. नहीं, ये सनी बता. So 1 Newton force applied हाँ. applied this अमितेश. if 1 Newton force is applied on an object and it get displaced by 1 meter is called 1 joule. अभिषेक. 1 joule of work. In the Newton direction force is of applied on an object and it gets displaced by 1 meter in the direction of applied force, then it is 1 joule. Then the work done on the object. A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plow. तो एक पेयर ऑफ बुलक्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ठीक है, ये फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, सो दीज आर, मतलब दो जोड़ी बैल हैं, हीरा और मोती. अरे हाँ चूरी का छी चूरी का अरे हिंदी में दो बैलों की ठीक है. उसको पता लग रहा है. सो इस तरीके से ये दो जोड़ी बैल हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं कि खेती जोत रहे हैं. तो ये कुछ इसमें क्या है, जब ये आगे चलते हैं तो ये जुआ इनके इस पे लगा हुआ, उससे ये खींचते चल जाते हैं. दैट इज हल. इनके इस पे लगा हुआ, ठीक है. तो अब पेयर ऑफ बुलक्स हैं, तो इन्होंने कितना फोर्स अप्लाई किया, ये प्लो है और इन्होंने फोर्स अप्लाई किया क्या 140 न्यूटन. सर मुझे बकरी को वो एक बार नेट से देख के सही है. और बताओ इन्होंने कितनी जमीन खोद डाली, 15 मीटर. 15 मीटर की जुताई कर डाली. So what is the work done by those pair of bullocks? फोर्स इनटू इतना सा क्वेश्चन तो मैं सोचूं ड्राइंग बनाई तो बड़ा होगा. साक्षी का बैल देखो, मजेदार है. एक सौम्या है और एक खुद साक्षी. तेरे तू बैल है. तो अब इतना हो गया, इतने जूल वर्क डन इन्होंने किया. तो नाउ वर्क हम लोग का खत्म हो गया है. अब एनर्जी पर चल. ये चैप्टर वर्क और एनर्जी का है. वर्क हमने कंप्लीट किया. सर अभी तक धुआं नहीं छू रहे हैं. अच्छा चलो कोई बात नहीं. एग्जाम्पल 11.2. एग्जाम्पल क्या है, पोर्टर लिफ्ट से लगेज. पोर्टर जो है जमीन में रखा हुआ लगेज है, तो उसको वो उठाता है पोर्टर और अपने सर पे रख लेता है. ठीक है. पुली, सो वो अपने सर पे वो बक्सा रख लेता है जमीन से उठा के. ठीक है. ये देखिए, तो अब इसको ये पकड़ ले रहा है और इतना इसने उठाया है, तो बताओ वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा क्या, और बक्सा ऊपर उठेगा भी. तो अगर बक्से का वजन, क्वेश्चन पढ़ो, 15 kg. इफ 15 kg का है तो बोलो इस पर नीचे वेट कितना लग रहा है. क्या जो वेट mg लग रहा है वेट, तो वेट कितना लग रहा है बताओ. 15 इंटू उन्होंने 10 लिया. अब इन्होंने 10 लिया है, तो क्या ये 150 न्यूटन का वेट लग रहा है.
Yes, sir. तो अगर ग्रेविटी इसे 150 न्यूटन से खींच रही है तो तुम्हें इतना ऊपर फोर्स लगाना होगा, तभी उठा सकोगे, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है। अगर आप अपोजिट उतना फोर्स लगा देते हो थोड़ा सा ज़्यादा तो ले ही जाओगे, उतना तो लगाना पड़ेगा कि नहीं। इस पेन को ग्रेविटी खींच रही है, 1 किलो आलू को ग्रेविटी 9.8 न्यूटन से खींचती है कि नहीं, 1 × 9.8। तो आपको उसको उठाने के लिए कितने न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, 9.8 न्यूटन, तभी तो 1 किलो आलू उठा पाओगी। तो 15 न्यूटन को उठाने के लिए 15 × 9.8, यहाँ 10 अप्रॉक्सीमेशन में लिया गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं। तो इस कुली ने कितना फोर्स लगाया ऊपर की ओर बताओ। सो इस कुली ने 25 नाउ समझ में नहीं आया सर। फिर से समझो कि एक कुली जिस बक्से को उठा रहा है वो 15 किलो का है, तो उसका वेट क्या है बॉक्स का, 15 kg। केजी में वेट थोड़ी ना होता है, न्यूटन बताइए 10 से मल्टीप्लाई करके या 9.8 से, जिससे चाहे 150 न्यूटन है। तो नीचे की ओर इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो कुली को इतना ही ऊपर लगाना पड़ेगा तभी तो उठा पाएगा, बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो भाई कोई जैसे मान लो ये टेबल है, इस टेबल को सृष्टि इधर खींच रही है, तो सौम्या को उतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा जितनी सृष्टि लगा रही है। वो 100 न्यूटन से खींच रही है और सौम्या 100.00001 न्यूटन लगा दे तो खींच जाए सौम्या की, उसका काट दें और फिर थोड़ा सा ऊपर लगा दें। समझ आई बात कि नहीं। तो अगर इस कुली को बक्सा उठाना है तो अगर वो बिल्कुल उसको काउंटर एक्ट कर दें और फिर वो जहाँ चाहे वो ले जाए, क्योंकि इट इज़ नाउ विदाउट एनी फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आई कि नहीं। तो अगर ये बात समझ आ गई, नहीं तो ऐसे होता है, तुम लोग मजा भी लेते हो आपस में कि जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में एक प्लेनेट जा रहा है, उसको ठक से मार दो, तो देखो हमने उधर मारा था चला गया, क्यों ठक उधर चला गया, ठीक वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी खींच रही है और वहाँ कितने 1000 टन का है, क्योंकि वो वहाँ उस पर टोटल बैलेंस फोर्स 0 है, तो वो तुम्हारे ए बिट ऑफ फोर्स से वो चल देगा, उसकी ऑर्बिट बदल दोगे। समझ में आई बात कि नहीं। वहाँ क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो इस तरीके से नाउ ये पोर्टर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, पोर्टर अप्लाइज 150 न्यूटन फोर्स in upward direction, ठीक है, to lift it। अच्छा वो डिस्प्लेस कितना कर रहा है बताओ, 1.5 मीटर, जो उस आदमी की हाइट होती उतना वो कर रहा है। सो एंड displaces it up to 1.5 मीटर। तो बोलो वर्क डन क्या हुआ, 150 न्यूटन तो उसने फोर्स अप्लाई किया और 1.5 मीटर तक उठाया। तो 225 और 0 लगा दो और 8 डिजिट पहले क्या लगा दो, तो 225, बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो now exercises। पहला क्वेश्चन ये बताना है कि कब कब काम हो रहा है और कब कब काम नहीं हो रहा है। तो सुमा नदी में तैर रही है, क्या आप बताएंगे कि इसमें काम हो रहा है। हाँ, so Suma is applying muscular force and it get displaced। force लगाएगी तभी तो तैर पाएगी। Suma is applying muscular force and getting displaced, so work is done। yes, work is done। अब सेकंड देखो, that is donkey is carrying a load on back। तो
तो काम हो रहा है कि नहीं? तो अगर ये मूव नहीं करना तो डंकी है, और इसके यहाँ पे लोड रखा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज है। अब ये आगे बढ़ रहा है, तो एक तरीके से अब इस पर वर्क देखो, फोर्स किधर लग रहा है, देखो फोर्स ये है ना, वेट। तो एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज टेकिंग प्लेस एट परपेंडिकुलर टू वेट, सो नो वर्क इज डन। वो ऊपर नीचे उठाए तो तब उसका मेहनत है, अब पुली लेके चले तो उन लोग कहेंगे किसका पैसा दें, लोड तो नीचे था और तुम तो पैरेलल चल रहे थे, परपेंडिकुलर, पैसा किस जाता। जैसे सर पे वजन रखें, अब वो चल रहा है, तो लोग कहेंगे वजन तो नीचे लग रहा था, अब तुम परपेंडिकुलर चल रहे थे। साइंस के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर चला जाए तो वर्क डन इज जीरो, तुम्हें कोई पैसा नहीं देगा। नहीं, 9 के बच्चे कह सकते हैं, तो पुलिस समझ नहीं पाएगा, कहेगा अच्छा बाबू। सो acting downward and ये डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इस परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट इस परपेंडिकुलर, देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेट है ना, परपेंडिकुलर टू वेट, so no work is done. Third देखो, windmill is lifting water from a well. तो windmill जो है जब चलती है तो उसके चलने से क्या होगा, उसमें गियर लगा होगा, गियर इस तरीके का होता है, इस तरीके का सिस्टम। तो जब वो घूमेगी, इस पे पवन चक्की लगी है, बता रहे हैं विंड मिल, और यहाँ पर एक इस तरीके से ये गियर सिस्टम इसमें फंसा हुआ है। तो जब ये घूमेगी तो इसमें क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं एक रस्सी लगी होगी, वो पानी आ जाएगा बकेट से, और ये, और इसमें बहुत बड़े बड़े डैने लगे हैं, दैट इज टर्बाइंस। सो व्हेन टर्बाइन रोटेट्स, क्या कभी तुमने बाई एयर जाते हुए या कहीं से भी जाते हुए रास्ते में विंड मिल देखी है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत थोड़ा आगे पाली के आगे बहुत सारे विंड मिल हैं। Yes, sir. तो जब ये चलेगा तो क्या ये गियर रोटेट करेंगे? तो इसके चलने से क्या ये गियर मूव करेंगे? तो ये भी तो ऊपर मूव करेगा, तो पानी ऊपर उठेगा कि नहीं? और ये कोई इसको मान लीजिए ये कहीं बंधा हुआ है ये रस्सी, तो ये पानी वेल में से निकल जाएगा कि नहीं? तो इफ इट इज लिफ्टिंग, सो एज वाटर इज गेटिंग लिफ्टेड अगेंस्ट ग्रेविटी, वाटर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो रहा है बकेट का, अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है कि नहीं? सो इसलिए विंड इज डूइंग वर्क। यहाँ काम किसके द्वारा किया जा रहा है? विंड एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी इज डूइंग वर्क एज, एनर्जी में अभी पे आए नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है, आपसे ये कहा भी नहीं जा रहा है कि विंड एनर्जी कर रहा है कि कौन कर रहा है। सो एज बकेट इज लिफ्टेड, बकेट ऊपर उड़ रही है, लिफ्टेड अगेंस्ट upward against gravity, then so wind is doing work, wind is doing work। देखो अगर मान लो बिल्कुल यहाँ पर पाउडर पड़ा होता, बहुत ही अच्छा सा टेल्कम पाउडर या कैरम वाला, और तुम्हें एक अलमारी दे दी जाती तो तुम छूते हो भाग जाती, तब तुम्हें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। बात सही कि नहीं?
या बहुत ऑयल बड़ा होता, या स्केटिंग करने वाला है तो उसमें हाथी भी स्केटिंग करे तो धक्का दे दो तो खिसक जाए, होगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली आप वर्क करते हो तो किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करते हो। इंजन भी वर्क कर रहा है तो जो व्हील है और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में ही वर्क कर रहा है। तो इसलिए विंड को भी जो वर्क करना पड़ रहा है, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ अगेंस्ट ग्रेविटी, तो किसी न किसी के अगेंस्ट में तो तुम वर्क करते हो। क्या आप मुझे बता सकती हैं जो कि इस पोर्टर ने लगेज उठाया है तो किसके अगेंस्ट में वर्क किया? ग्रेविटी। तो एनी अदर फोर्स or factor is always there when we are working. When you are pushing something or almirah, when you are sliding almirah, then against which force you are working? Friction force. इसी तरीके से जो ये wind energy है ये किसके against काम कर रही है? Gravity के against काम कर रही है। तो फोर्थ देखो, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है सनी, बोलो वो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है? ग्रीन प्लांट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना रहा है, बताओ वो किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देयर इज नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। जैसा कि सनी ने बताया, अगर खाना बन रहा है, पेड़ में खाना बन रहा है, फल पक रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? ना कोई फोर्स लग रहा है, तो काम कहाँ हुआ? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। So no work is done. अगर तारों में कपड़े सूख रहे हैं तो कुछ काम हो रहा है। And इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। तो अक्षित बताएं, इंजन अगर एक ट्रेन को खींच रहा है तो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? फ्रिक्शन। यस, इंजन इज डूइंग वर्क against friction. So food grains are getting dried in sun. No work is done. No work is done. As force भी zero है, displacement भी zero है. A sailboat is moving due to wind energy. पानी में भी अगर बोट है तो फ्रिक्शन है, ऐसे कोई चीज आसानी से मूव नहीं कर जाती। तो यस, ड्यू टू विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है। विंड एनर्जी छोड़ो, विंड इज डूइंग वर्क, ठीक है। इट इज अप्लाइंग फोर्स एंड सेल बोट। सेल बोट का मतलब समझते हो? पाल वाली नाव, नहीं जानते? ये वो जो कपड़ा लगा होता है, हवा की वजह से चलती है सर, हवा की वजह से Pirates of Caribbean. ये इस तरीके से बहुत सारे कपड़े लगे रहेंगे और हवा चलेगी तब कपड़े लगे रहेंगे और फिर इसको हम टर्न भी कर सकते हैं। सर वो डायरेक्शन की डायरेक्शन। ये ऐसे बहुत सारे कपड़े लगे रहेंगे सर जैक्स पर, और फिर जब ये घुमाएंगे जिधर उधर ये चल जाएगी। हवा जैसे चलेगी तो तुमको इनको कपड़ों को वहां घुमा देना है तो तुम्हारी नाव चलेगी। बड़े बड़े कपड़े लगे रहेंगे, कैनवास, ठीक है। सो जो अंग्रेज लोग यहाँ आते थे ना, वो सेल बोट से ही आते थे। सर ई वाले में वर्क डन हुआ ना? किसमें? इंजन इज डूइंग वर्क डन। अब देखो सर यहाँ पे जैसे आपने बताया डॉक्टर का वर्क डन 0 है, तो इधर पूरी का वर्क डन 2 to 5
फाइव कैसे आया? किसका? कुली ने ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठाया, डंकी के पीठ पे रखा हुआ है, बस वो लेके चल रहा है। बस रखा तो हाँ, ग्रेविटी के लिए या बैठ जाए वो खड़ा हो जाए तब तो वर्क डन है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। फोर्स ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन वो ऊपर नीचे तो नहीं कर रहा है, वो उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर रहा है, चला है कि वो लेके चल रहा है, लेकिन डाउनवर्ड उसका फोर्स है, ग्रेविटी का वेट है, और चल वो इधर रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या परपेंडिकुलर नहीं हुए? वैसे पुली भी तो ऐसे लेके कुली के चलने के लिए नहीं कहा गया है, कुली का उठा के सर पे रखने के लिए। दूसरे कैसा सेल बोट, ट्रेलर लिखा सेल बोट, यहाँ जोधपुर में छुट्टी स्कूल की ऑनलाइन क्लास अरे प्राइवेट स्कूल में करवाई थी हमारे सिलेबस इतना पीछे पड़ा था, फिर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करता। रोज सुबह देखते थे मुझे एक के बारे में पता है। किसी को भी सेल बोट। देखो ये दिखाया गया है, सर जो आपने लिखा है विंड इज डूइंग वर्क, इट इज लाइक फोर्स ऑन सेल बोट होगा ना? हाँ, आपने एंड सेल बोट, तो अभी उसको ठीक कर देना। ये सेल बोट है, समझ में आया? ये है सेल बोट। सेल बोट समझ में आ गया? ये जो कपड़े लगे होते हैं उनको सेल बोट कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? ये देखो बहुत सारी सेल बोट होती हैं। तो ओल्ड टाइम सेल बोट जो अंग्रेज लोग चलाते थे ना, ये पाल वाली नाव। ये है ये पनीर के अंदर मिलेगा। ये देखो ये सब सेल बोट है। इसमें बहुत सारे, ये इतने सारे आप देख रहे हैं, ये इसको घुमा घुमा के जहाँ जाना होता है चले जाते हैं, कपड़े ही कपड़े। ये देखो ये है ताल वाली ना, देखो ये देखो दिख रहा है। चलो सेल बोट आपने देख लिया, अब हम आगे बढ़े। यही है सेल बोट। चलो अब बस आगे देखो, समझ में आ
गया ना? ज्यादा नहीं देखना है क्योंकि सूर्य ग्रहण हो गया। अब ये देखो, विंड इज डूइंग वर्क, इट इज अप्लाइंग फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई कर रही है और क्या वो हवा चलेगी? और जिधर से हवा है मैं उधर ही कपड़ा लगा दूं तो मेरी बोट पीछे जाएगी। इस यहाँ से हवा आ रही, मैं इस पर कोई चीज रख दूं तो वो हमें पीछे नहीं फेंकेगी। तो जहां मर्जी, अगर तुम्हें नहीं जाना है पीछे तो हवा ऐसे आ रही, ऐसे अपना कपड़ा रख दो, कुछ नहीं कर पाएगी। और ऐसे कर दो, डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तब हवा की डायरेक्शन में तो कभी बढ़ ही नहीं सकते उसमें। फिर इंतजार करो और वहीं पे अपना वो एंकर डाल दो और फिर उसके बाद जब अब उस डायरेक्शन से हवा है तब चलना। तो एंड सेल बोट इज मूविंग अच्छा, हमें लगा सेंटेंस खत्म हो गया। इन डायरेक्शन ऑफ एंड को ऑन कर दो। विंड। ठीक है, इतनी बात समझ आई? सेल बोट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ, डी पार्ट का आंसर है, उसमें सेकंड वर्ड क्या है? ड्यूरिंग। डी में ड्यूरिंग ड्यूरिंग यानी दौरान। ड्यूरिंग वो क्लियर अच्छा ठीक है, चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन करो। नहीं, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल, अगर इसको किसी एंगल में हमने फेंका और ये अपना ट्रैजेक्टरी पूरा कर दिया, ठीक है, तो इसको हमने फेंका और जिस पाथ से कोई चीज चलती है उसको क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी, यानी द पाथ अलोंग विद ऑब्जेक्ट इज मूव। तो हमने किसी एंगल पे फेंका था क्या, और ग्रेविटी हमेशा इस पे नीचे काम करती रही, तो उसी जगह वो गिर गया उसी लाइन में। तो जहां से फेंका था वहीं जमीन पे गिर गया। तो बताओ ग्रेविटी के अगेंस्ट में डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं? Yes, sir. नहीं, यहां से फेंका और यहां गिर गया। तो बताओ पहले भी वो ग्रेविटी के लेवल पर ही था और फिर यहां से यहां गिरा, तो अभी भी तो जीरो पर ही है, ऊपर तो नहीं उठा ना ग्रेविटी से। तो इस वजह से आप मान लो इस पेन को यहां उठाते हो, Yes, sir. तो क्या आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और 1 मीटर उठाया, तो क्या आपने 1 जूल वर्क किया 1 × 1। अब ये पेन नीचे आए या छोड़ दो तो अब कौन काम करेगा? आप करोगे कि ग्रेविटी? क्योंकि ग्रेविटी इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रही हो, कहेगी हम तो खींच लेंगे, या कोई भी चीज यहाँ से अभी कुछ भी आएगा ना, मान लो अर्थक्वेक, तो सब नीचे गिर जाएगा। तो एक तरफ तुम काम करते हो और एक तरफ कौन काम करता है? ग्रेविटी। या ये कह सकते हो कि नाउ अब आप कितना भी उठा लो बट लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाए, जैसे कोई बच्चा उठा ना पा रहा हो 1 किलो आलू, तो उस समय ग्रेविटी काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में ये वर्क डन है आपका और ये ग्रेविटी का वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन आप समझ लीजिए कि हमारा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो वहीं का वहीं आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी होते हैं, हमने पहले भी बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं कि आपका किया हुआ काम सुरक्षित हो जाए। पोर्टर ने उठाया बक्सा ऊपर रख दिया, बोला कि मैंने भाई इसको 150 जूल काम किया है, तो तुमने जो ऊपर रख दिया या उस पोर्टर ने रख दिया, तो 100 साल बाद उसके नाती पोते भी आएंगे और हल्का सा गिराएंगे और काम, ये बैंक में जमा हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में तुमने एसी टांग दिया, अब ये वर्क डन हो गया, टांगने में 4 आदमी की मेहनत लगी है, लेकिन सालों सालों तक बैंक तक जमा हो गया, बस अब इसको कोई हल्का सा ऊपर उठा दे, जहाँ पीछे हिंज में लगा है गिर के काम कर दे। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? इफ वर्क इज डन अगेंस्ट दैट फोर्स यानी ग्रेविटी, देन योर वर्क गेट कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? दैट इज द एनर्जी कंटेन्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन। जो इसमें एनर्जी किसकी वजह से, क्या इसकी स्थिति की वजह से इसमें एनर्जी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो अब समझ में आ जैसे, या उससे कॉन्फ़िगरेशन, तुमने तीर कमान में तीर खींच लिया तो क्या उसमें एनर्जी है? छोड़ोगे तो काम कर देगी। तो इस तरीके से, या स्प्रिंग, वो भी कॉन्फ़िगरेशन है। सो इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ए फोर्स एंड दैट वर्क गेट कंजर्व्ड in form of potential energy,
then that force is called conservative force. Repeat करो. If work is done, then it gets stored in form of conservative. नहीं सब मिला दिया. देखें कोई ना कोई इंटेलिजेंस होगा. देखो whenever work is done and our work is conserved in the form of potential energy, then it is conservation of force. Then that force is called conservative force. Then that force is फिर से सुनो साक्षी. If work is done against a force, तुम्हें ग्रेविटी के और नहीं काम करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है. If work is done against a force and your work get conserved, आपने दर्जन काम के कंजर्व करेंगे. In form of, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? गिरेगा तो काम करेगा इसके पोजीशन की वजह से. And your work is conserved in form of potential energy. Then that force is called conservative force. Repeat करो. if work is done against that force, gravity will be there. Conservative against gravity कुछ भी बोलो. If work is done against gravity and work get conserved. If work is done against a force बोलो, gravity मत बोलो. If work is done against the force and it gets converted in नहीं बता पा potential. रहे. बोलो. Sir, if work is done against a force and it get conserved in a form of potential energy, then that force is called conservative force. बहुत अच्छा होता है. बोलो. आप भी बता लो. If any work is done against a force, then it get conserved in the And it get conserved. and it get conserved in the form of potential energy. Then that force is called conservative. जैसे देखो मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया 10 जूल का, खिसकाया, मेहनत की है. अब मैं सोचूं अच्छा वापस आओ मुझे दो मेरा काम. तो कह रहा कौन सा काम, कहाँ का काम, भूल गया. बोला कोई काम नहीं, सब हीट में निकल गए. तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करोगे तो कंजर्व रहेगा. तुमने अपनी बुक खिसका दी वापस आ जाएगी क्या? और पेन को उठाओगे और छोड़ दोगे तो वापस जाएगा. इफ कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड, इसके चारों तरफ के बंधन हटा दिए जाए तो चुपचाप गिर जाएगी. ये काम दे देगा लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम होगा. ग्रेविटी वापस मान लो हमने ऊपर ले आए और छोड़ दो, इसके कंस्ट्रेंट्स हटा दो तो ये फिर नीचे चला जाएगा. तुम्हें काम दे देगा ना. समझ में आए कि नहीं? तो भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा. ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो धान ऐसे ही तो कूटा जाता है. तुम मूसर उठाते हो और खल्लर में मारते हो तो इस तरीके से धान कूटता है कि नहीं? इमाम दस्ता तो होगा आपके घर में जिसमें धान कूटा जाता है, तो या खल्लर मूसर होगा. तो ऊपर उठाया ठप ठप तो उठा के मारते तो आप समझे कि काम हो रहा है कि नहीं? तो कंजर्वेटिव फोर्स में उठाने पे छोड़ने पे गिरता है कि नहीं? अब फ्रिक्शन में वापस आएगा. कुछ भी करना वापस सुनो, वर्क वापस नहीं मिलेगा. That it get conserved. तुमने सुन ले 150 जूल काम किया तो ये इसमें है एक्स्ट्रा. बोलो इस पेन में ज्यादा एनर्जी है कि इस पेन में? तो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया तभी तो उसमें ज्यादा एनर्जी है. इट गेट कंजर्व, जमा हो गया उसमें. अब जब भी गिरे 100 साल बाद इसके नीचे का अगर सपोर्ट हटा दिया जाए तो गिर जाएगा. तो ये ज्यादा काम करेगा कि ये पेन? फिर तो बोलो उसमें है नहीं पोटेंशियल एनर्जी. आपका एक्स्ट्रा किया हुआ काम ही तो उसमें जमा हो गया. और ये फ्रिक्शन वाले केस में यहाँ पे रखे पेन में ज्यादा एनर्जी की यहाँ कहीं नहीं है. वो सब हीट में डिसिपेट हो गई. फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम करो आपकी बुक लौट आएगी क्या? और ग्रेविटी ऊपर उठा तो लौट के फिर चली जाती है. फ्रिक्शन कोई वो थोड़ी है. तो इस तरीके से एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दो. फ्रिक्शन हो गया. अगर दो इलेक्ट्रॉन को पास लाओ और अब पास लाने पे हाथ हटा लो तो क्या वो भागेंगे? तो तुमने जो काम किया क्या वो काम उसमें जमा हो गया? वो भागना चाहते हैं, भागने नहीं दे रहे हो और छोटे ही भागेंगे और आसपास टकराएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. दो नॉर्थ पोल को पास लाओ और छोड़ दो तो क्या फिर से भागेंगे? तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि कितना फोर्स होता है. बात समझ में आई कि नहीं? सो मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फोर्स होता है. इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, कोई थोड़ा नहीं होता है. इट इज वेरी लार्ज. ये देखो
नियोडायमियम के तो मैग्नेट ऐसे होते हैं कि दो मैग्नेट सिर्फ यहाँ पकड़ के ऐसे छोड़ भर दो तो ये पूरा मुंह पिच्चा करके आपस में मिल जाएंगे, तुम्हारा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यस सर, सिल्वर सर दिखाओ नियोडायमियम का मैंने सर टीवी में दिखाओ सिल्वर ये देखो, नॉर्मली होता है ठंडी आती है। ये देखो दो तीन है। अब इसमें दो को ही मुश्किल से हटाने में ही दिक्कत हो रही, थोड़ी हेल्प करो मेरी। हाँ सर, इसके बड़ा वाला मत जाना, ये नहीं होंगे लिवी अब इसको बड़ा वाला बस। कितना फोर्स है मैग्नेट, तो और यही बड़ा हो तो क्या हालत हो। सो जरा देख लीजिए, ये देखो इवन तुम इधर एक रख लो, इधर रख लो तो भी नहीं होता। नियोडायमियम मैग्नेट, अरे नियोडायमियम उन्होंने भी तो दे दो। अब गया, अब नहीं आएगा वो। ऐसे ऐसे खेलो मत, तो महंगा कहीं चिपक गया तो ढूंढे नहीं मिलेगा। ये देखो, It's my turn. ये देखो लाइटर, ये जरा देखिए, बैठ जा। अरे जीसस होता है वो। ये यूज होता है पागल। अरे गॉड, जीसस अलग होता है। थंडर का गॉड होता है। ये रख दिया। एक मैग्नेट, ओ भाई इतना बड़ा करना, ये छोटे को चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। ये देखो, है हल्का हल्का बोल। यार ये तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अरे ये तो ऐसे बताया सर उसका। ये अपने आप चलो मुंह पे चिकना दिखा। वो हमारे पास भी नीचे रखा हुआ है, वो जो नीचे है वो मैग्नेट है। सर के ऊपर करके देखते हैं। ये सब नहीं देखना है, थोड़ा और ये देखो, मेरे को देखना है ये कि देखो। मुंह पीछे वो कर लाइटर की बर्बाद कर रहा है। पता नहीं सर। साउंड ये परवानी लगा ना। इसका पटाखे रखो थे ना, साइड साइड को पटाखे रखो, क्या हो गया? स्वाहा। वो कितना दूर खड़े हैं, ओ खड़े हैं। जो पास में खड़े हैं बेचारा टेबल। अरे यार कितनी ये देखो, ये भी अच्छा है। एक प्लास्टिक है, समझो जैसे हम लोगों को दो मैग्नेट लिया, ये प्लास्टिक है हाँ, बीच में। सर वो डॉक्टर सर ब्लैक वाला प्लास्टिक है। हाँ, ब्लैक रबर प्लास्टिक है। अब ये देखो, अभी तक दब रहा है। ऐसे ही मुंह का हाल करेगा। चपक रहा है। असली में किसी का मुंह आंखें बाहर निकले या फिर निकालते कैसे? फिर मैं समझ में आई बात? अब देखो, वो निकालना वो मुश्किल है। तो अब हम आगे की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ बताओ कि एस बताओ डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं। जिस लेवल पे ग्रेविटी थी वहीं पे चीज आके वहीं गिर गई तो कोई काम नहीं। क्योंकि अगर कोई भाई मैं इस चीज को यहाँ जमीन में खिसका दूं तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम किया है? नहीं। मैंने फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ काम किया है? हाँ, फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं किया। तो कोई चीज ऊपर से आके वहीं गिर गई। सो लिखो एस देयर इज, सुनो, हाँ ध्रुव क्या बोले अगला सेंटेंस?
ये देखो बोला नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से जैसे ध्रुव ने हम सबको बताया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा, तो इस तरीके से यहाँ आगे क्या बोला, नहीं निकलेगा। इस तरीके से वर्क डन नहीं निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ऐसे बीच में डिस्टेंस हुआ पर ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट पहले जिस लेवल पर था उसी लेवल पर आ गया, तो अगर उठ करके भी आया है तो वो उसी लेवल पर है। बीच में मान लीजिए अगर ये यहाँ आ जाता, यहाँ पर आके गिरता, तो हम कहते भाई हमने वो चीज तो उठा के ऊपर रख दी है पत्थर, अब इतना मेरा माना जाए वर्क डन। कोई कहते उठा के ग्रेविटी को उठा के वहीं पर रख दे इसलिए वर्क डन, तो वर्क डन नहीं है। और कोई किसी ने कहा बक्सा उठा के और उसको पोर्टर के सर पे रख दिया, तो बोला हाँ हो गया वर्क डन। देखा मैंने कैसे भी रखा तो उसी लेवल पर आ गया ना। कोई चीज उठा के उसने सर पे रख दिया बक्सा, तो वर्क डन हो गया। और उसने उठाया अब बाल वहीं गिर गई, तो कोई वर्क डन हुआ? ग्रेविटी के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं अगर हुआ। उसने बॉल ऊपर नहीं फेंकी होती, सीधी फेंकी होती, कहीं भी तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो। हाँ, ग्रेविटी तो के अगेंस्ट में काम तभी होगा जब ग्रेविटी जिधर लग रही है उसके ऊपर या नीचे डिस्प्लेस हो। तो क्या यहाँ ऊपर या नीचे डिस्प्लेस हुआ? तो नहीं हुआ। ऐसे डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता है, वो उसमें फ्रिक्शन का सर यहाँ पे तो ग्रेविटी पूछे तो उसी के हिसाब से बताना। ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो कि क्या लिखेंगे, एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ये यहाँ गिरता तो होता और यहाँ गिरा इसलिए नहीं हुआ। समझ आई बात की नहीं? एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी। पोर्टर सर पे न रखता, बक्सा उठा के गिरा देता तो उसको कोई पैसा देता? नहीं। तो फिर उसने ऊपर उठाया उसी के लेना था। एज देयर इज नो displacement against gravity with respect to, जानते हो जिसे with respect to यानी उसके सापेक्ष, with respect to यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन में, no displacement in the direction of gravity, ये भी लिख सकते हैं। Sir, there is no respect, फिर नो डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, अगेंस्ट भी लिख सकते हो या विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर नहीं जानते हो तो हंसने की बात नहीं, फिर इस पर ही रहो। मान लो आपके लिए ये नया वर्ड हो, 10th के लोग तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ये बोल रहे कि ये क्या चीज है विद रिस्पेक्ट, क्या हम उसे इज्जत दें क्या? बस इतना ही है। So there is no work done against ये दे दो मैग्नेट, तो इधर कहीं चिपक जाएगा तो घूमते फिरेंगे। सर ये आगे ये कहना है, हाँ। माफ कर। अब अगला देखिए, वो तो एनर्जी से फोर्थ क्वेश्चन देखो। सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg, 20 kg की चीज है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन भी होगा। अब फोर्स लगेगा तो मान लो इस पर फोर्स लगा और इसकी स्पीड कितनी थी, क्या 5 मीटर पर सेकंड थी, तो इसकी स्पीड बढ़ी या घटी? बढ़ जाएगी। हम आप बताइए, घट गई है, तो इसका मतलब है फोर्स इधर खींच रहा है, इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। कोई चीज जा रही है और सौम्या की साइकिल पकड़ कोई पीछे खींचे, तो सौम्या की साइकिल की स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? तो घटती घटती कितनी घट गई? 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड। अगर कोई पीछे पुल करे, ये समझो फ्रिक्शन है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है। किसी भी व्हीकल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है और तुम उसका इंजन बंद कर दो तो फ्रिक्शन के ही सहारे तो चल रही है, थोड़ी देर में गाड़ी रुक जाएगी। विच फोर्स इज नाउ एक्टिंग ऑन इट? फ्रिक्शन है, तो उसकी स्पीड, उस पर कितना फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, बताओ कितना दिया है? 20 kg, 20 kg की है, तो 20 kg की चीज है
और व्हाट इज द वर्क डन? तो 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 to 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वर्क डन चाहिए, तो अब जरा देख लें कि वर्क डन क्या होता है? F into S होता है, और F क्या होता है? और इंटू एस, बोलो सही है? अच्छा, क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो और फाइनल वेलोसिटी पता हो तो दो चीजें पता है? ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो आपको वर्क डन बताना है। अभी इसके लिए हम लोगों को वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? अगला टॉपिक, चलो अब ये सवाल आगे हम लोग अब सीधा नहीं कर सकते हैं, हमें कंजर्वेटिव प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। जो अभी आप लोगों ने रिपीट किया ना, हम लोग वापस आ जाते हैं इस सवाल कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। जब तक वो नहीं लिख लेंगे ये सवाल नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, वो कॉन्सेप्ट हम लिख लें, उसके बिना नहीं होगा। ये सब पढ़ ही लेते हैं। हमने सोचा हो जाएगा। हो गया अगर देखो, अगर इसमें टाइम दिया होता तब हम एस निकाल लेते, सिर्फ स्पीड से हम एस कैसे निकालें? नाउ अब देखो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। Conservative force. If work is done against a force, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट आप करो, वर्क इज डन ए फोर्स, यदि किसी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए और हमारा कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाए तो उस बल को संरक्षित बल कहते हैं। इफ वर्क इज डन अगेंस्ट ए फोर्स, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, एंड योर वर्क गेट कंजर्व इन फॉर्म, आपको पूरा याद है, एंड योर वर्क गेट कंजर्व, नोट कर लिया था क्या? नहीं गेट कंजर्व इन form of potential energy, then that force is called, उस फोर्स को क्या कहेंगे? Called conservative force। एग्जाम्पल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। स्प्रिंग को दबाओ तो फिर ये सर्ट कर देगी। ग्रेविटी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, अगर किसी भी रबर बैंड के अंदर फोर्स किया हुआ, वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आते हैं, कार्बन के बीच के बॉन्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ गए? ये चार है, तो उसको क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ अब जरा देखें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। Energy contained in a body due to its position or configuration, यानी उसका विशेष संरचना कैसी है, is called potential एनर्जी। जैसे मान लें
ये क्रॉस बो, स्ट्रेच्ड क्रॉस बो, ये तो इसमें एनर्जी है। सो स्ट्रेच्ड क्रॉस बो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मान लें किसी एल्मीडा के ऊपर एक गुलदान रखा हुआ है, फ्लावर वेस, तो इस तरीके से इसमें भी एक फूल है इसमें, तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है। और या एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने दोनों हाथों से दबा दिया है, तो बोलो तब भी क्या इसमें एनर्जी है? ये आपने स्प्रिंग को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो भी इसमें एनर्जी है कि नहीं? तो इन सभी पोजीशंस में क्या होगा कि कोई चीज ऊपर रखी हो तो, या कोई क्रॉसबो को स्ट्रेच कर दिया हो, तो इसमें ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी संरचना में चेंज कर दो, इसका स्ट्रक्चर बदल कर रख दो। तो हमने अगर इसको इस तरीके से लकड़ी को मोड़ दिया है, तो जैसे ये खुलेगी तो बड़ा काम कर देगी, नहीं करेगी? रबड़ को जैसे पुश कर दिया, रबर को खींच दो, जैसे इन्होंने बताया रबर बैंड, तो इन सब चीजों में कॉन्फ़िगरेशन, ये स्प्रिंग को दबा दो, जो फ्लावर वास है उसमें का उसकी लाइक स्ट्रक्चर तो उसको ठक से मारो, ये नीचे गिरेगा, काम हो जाएगा ड्यू टू इट्स पोजीशन। वो कबर्ड तो हंस इसलिए रहे, कह रहे देखो फ्लावर बेस रखा है, रखना होता तो कुछ गिन्नी रख देते। आप देखो इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत कॉन्शियसनेस होती है उनमें। अभी एकलव्य ऐसे नहीं हंसता है, अब पहले भी हमने रखा था तो इसने बोला था सर आपने गुलदान को रखा, आप वहाँ कुछ और भी तो रख सकते थे। हम लोग साइंटिस्ट का एक आर्ट से क्या लेना देना, मतलब उसका उसकी प्रैक्टिकल सोच है, वो ऐसे नहीं सोचता है हम लोगों की तरह। नहीं कहता है यहाँ पर आप कोई और चीज रख देते, एक वर्नियर कैलिपर्स रख देते, स्फेरोमीटर रख देते, उसका ये मानना था, लेकिन हमने गुलदान रखा, तो चीजें बदल गई कि नहीं? और आप पूछें हंस क्यों रहे हैं? जब उस लेवल तक जाओगी जहां पर सनी है वहां तक सब नहीं पहुंच सकते। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? potential energy contained in a body due to the positive conservation is called. सही है। जैसे कहने कि व्हाट इज एनर्जी, कुछ भी हो तो दैट इज एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सब अपनी अपनी तरह से पर्सपेक्टिव देखो। Is an energy contained in a body due to its configuration of its position is called और its position called potential energy. एनर्जी, ठीक है। एग्जांपल बताइए। सर एग्जांपल वो एरो वो को स्ट्रेच करते सही है। अदरवाइज समथिंग केप्ट एट हायर हाइट हो सकता है। और एक कंजर्वेटिव फोर्स बता दो। when you apply force on an object and your force get conserved in that object, then फोर्स नहीं कंजर्व रहता है, बोलो ईशान। If an object ध्रुव बताएं। If work is done against the force, then the force will be stored at potential energy. रिपीट करो। If work is done against force and work is conserved, it is called potential. It In has- form of potential. In form of potential energy. Then? Then it is said that the energy is conserved. नहीं तो कंजर्वेटिव फोर्स पूछे तो बोलो। then that If conservative force, if work is done against the force, then your work is conserved in the form of potential energy. This is called conservative force. बार बार देन ना लगाओ। If work is done against a force and your work is conserved in form of potential energy, then the force is called. हाँ चल रिपीट करो। If work is done against a force and the work get
conserved in the form of potential energy, then the work is said to then it is said to be as conservative force. Then the force is said to be conservative. ठीक, इतना ही रखिए. Thank you अवनी. सर आज 5:30 मेरी क्लास है. और दूसरा कौन है? सृष्टि. सर आपने आज 5:30 मेरी क्लास है. आपने 5:30 मेरी क्लास गड़बड़ हो गई. मैंने वापस घर जाते हैं.